بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی۔ یہ سردیوں کے دن تھے، رات کے 8 بج چکے تھے، پورا گاؤں گہری تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دور دراز کے دیہاتوں میں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی تھی۔ لوگ رات کو چراغ جلایا کرتے تھے یا پھر لکڑیوں کی آگ سے اپنے گھروں کو روشن اور گرم رکھتے۔ صغیر احمد اپنی دادی کے پہلو میں چارپائی پر لیٹا اپنی پسندیدہ کہانی سن رہا تھا اور صغیر کی ماں چولہے پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ ساس بہو کا رشتہ ماں بیٹی جیسا تھا۔ بوڑھی ہونے کے باعث نظیرہ اپنی ساس کو کبھی بھی کوئی کام نہ کہتی، ہمیشہ اس کی خدمت بجا لاتی، جبکہ اس کا بیٹا صغیر احمد دادی کے ساتھ بہت ہلا ہوا تھا۔ وہ روزانہ رات کو دادی سے کوئی نہ کوئی پرانا قصہ ضرور سنا کرتا تھا۔ اگرچہ نظیرہ عمر کے اس دور میں آ چکی تھی جہاں دماغ ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا، مگر اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑی بیکی کہانیاں سننے کی عادی ہو گئی۔ اب یوں ہونے لگا کہ نظیرہ جب بھی روٹی پکاتی وہ اس بات کی یقین دہانی ضرور کرتی کہ اس کی ساس کی چارپائی چولہے کے پاس ہی بچھی ہے تاکہ وہ بھی کہانی سے لطف اندوز ہو سکے۔ صغیر احمد کی عادت تھی کہ چارپائی پر اچھل کود کرتا، کہانی بھی سنتا اور شرارتیں بھی کرتا۔ یوں گاؤں کے اس پرسکون ماحول میں کئی شامیں آتی اور رخصت ہو جاتی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ صغیر احمد بڑا ہو رہا تھا، جبکہ اس کی کہانی سننے کی عادت اب بھی نہیں گئی تھی، لیکن کچھ دنوں سے صغیر احمد کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ کہانی کے بیچ میں وہ اکثر ہی اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دور پہاڑوں کی افق کو دیکھا کرتا۔ اس وقت گاؤں میں چونکہ بجلی نہیں تھی، اس لیے ہر طرف اندھیرا ہی ہوتا تھا۔ اکا دکا لوگوں کے گھروں میں لکڑی کے جلتے چراغوں کی وجہ سے زمین پر ٹمٹماتے تاروں کا گمان ہوتا تھا۔ صغیر احمد کی کہانیوں میں دلچسپی رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی، لیکن بات صرف یہیں پر ہوتی تو نظیرہ کی ساس کو بھی فکر نہ ہوتی۔ ایک دن کہانی سناتے سناتے بڑی بی نے دیکھا کہ صغیر کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ انہوں نے جو صغیر سے گریدا تو کہنے لگا، دادی آپ کو پتہ ہے گاؤں کے اس پار جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر مجھے اکثر ٹمٹماتی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ دادی نے جو صغیر احمد کی بات سنی تو انہیں بھی سخت حیرت ہوئی کہ رات کے وقت یہ ٹمٹماتی روشنیاں آخر کہاں سے نظر آتی ہیں۔ تبھی انہوں نے صغیر سے وہ روشنیاں دکھانے کا کہا۔ صغیر، نظیرہ اور بڑی بی تینوں ہی گھر سے باہر آ کر کچے صحن میں کھڑے ہو گئے۔ صغیر نے دور پہاڑوں کی افق کی جانب اشارہ کر کے کہا، دادی جان وہ دیکھیے، سفید روشنیوں کا ٹمٹماتا ہوا منبع کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دادی کی تو نظر کمزور تھی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی نظیرہ کو روشنیاں نظر نہیں آئیں۔ صغیر نے بہتیرا کہا کہ اسے روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر نظیرہ اور بڑی بی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ البتہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ صغیر احمد کی دلچسپی ان ٹمٹماتی روشنیوں میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صغیر گھر میں اکیلا لڑکا تھا، اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ صغیر کا باپ کبیر بیرون ملک پیسے کمانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ گھر میں نظیرہ اور دادی اماں ہی تھیں جو اس کا خیال رکھتی تھیں، لیکن شاید اب سوچ کا پرندہ اڑان بھرنا چاہتا تھا۔ تبھی صغیر احمد نے ایک دن اپنے دوست سے اس بات کا ذکر کیا۔ صغیر احمد کی عمر ان دنوں کوئی 9-10 سال ہی ہوگی۔ چڑھتی عمر کے جوش نے صغیر احمد کو اس کھوج پر مجبور کر دیا۔ اس کا دوست بھی اسی کا ہم عمر تھا یا کوئی 4-5 سال اوپر ہی ہوگا۔ صغیر احمد کے دوست نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے، اسے قریب سے چل کر دیکھنا چاہیے، نہ کہ قریب سے ہو کر اندازے لگائے جائیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر سے کیسے جایا جائے۔ گھر والوں سے مشکل سے 1 دن کی اجازت لینا بھی ناممکن بات تھی۔ بالآخر یہ لوگ اپریل میں لگنے والے اس میلے کا انتظار کرنے لگے جس میں گاؤں کا ہر بوڑھا بچہ شامل ہوتا تھا، اور یہ میلہ گاؤں سے کافی دور لگتا تھا۔ اس میلے میں آس پاس کے قصبوں کے لوگ بھی آتے تھے۔ ان لوگوں کی کثرت دیکھ کر زیادہ تر لوگ اپنا مال بیچنے بھی آ جاتے۔
यूं पूरे गांव में रौनक सी लगी रहती थी। खैर से मेला आने में अब 2 महीनों का वक्त ही तो रह गया था। जनवरी की सर्दी गुजरी तो लोगों ने अपने काम धंधे फिर जोरों शोर से शुरू कर दिए। अब गांव में मेला लगने की तैयारियां भी हो रही थीं, क्योंकि खबरें आ रही थीं कि इस बार मेला अप्रैल की अवाइल तारीखों में ही लगेगा। असगर और उसका दोस्त भी तैयार हो रहे थे, क्योंकि उन्हें बतौर ख़ास इस मेले में शिरकत करनी थी। और सिर्फ मेले में शिरकत ही नहीं करनी थी, बल्कि वहाँ पर जाकर उन सफ़ेद टिमटिमाती रोशनियों का पता भी लगाना था जो अक्सर सगीर को सरे शाम नज़र आती थीं। खैर खुदा खुदा करके मेले का दिन भी आ ही गया। गांव के बच्चे बड़े बूढ़े इस मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ औरतों ने घर में बनाई गई कालीनें और चादर वगैरह भी अपने साथ तैयार कर रखे थे, ताकि मेले में उनकी अच्छी खासी आमदन भी हो सके। गांव के लोगों का रिवाज था कि वो रात गए तक मेले को ख़त्म न करते थे, और अक्सर ही ये मेला चांदनी रातों में लगता था, ताकि लोग चांद की रोशनी में घरों को वापस आना जाना कर सकें। मेले से वापसी पर लोग टोलियों की शक्ल में सफ़र किया करते थे। जंगल की एक ख़ास लकड़ी आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसका चिराग दूर दूर तक लोगों को मेले में आने की दावत देता था। बहरहाल ये 25 अप्रैल की बात थी, जब सगीर नज़ीरा, उसका बाप कबीर, जो चंद दिन पहले ही परदेश से लौटा था, और बड़ी भी मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आज गांव का हर घर सिवाय उस घर के जहां कोई माजूर या बीमार हो तकरीबन खाली हो चुका था। लोग सुबह सवेरे ही मेलों में चले गए थे, जबकि सगीर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त, तुम्हें क्या लगता है वो घाटियां यहाँ से कितनी दूर हैं? सगीर ने अपने दोस्त अकमल से कहा। कहने लगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, हम अगर अभी से चलना शुरू कर दें तो ज़ोहर के वक्त तो पहुंच ही जाएंगे। उस वक्त दिन के 10 बजे थे। गांव में ठंडी हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू गांव की सारी फिजा में फैली हुई थी, क्योंकि पिछली ही रात ज़ोरदार बारिश हुई थी। इस बेमौसमी बारिश ने एक खुशगवार सा तासुर पैदा कर दिया था। बहरहाल सगीर अपने दोस्त अकमल को लेकर अपनी माँ से इजाज़त लेकर सर्कस देखने के बहाने दादी और माँ से दूर चला आया। दादी और माँ वैसे भी औरतों वाले हिस्से में बैठी थीं, जबकि कबीर को अपने बेटे की इतनी परवाह न थी। खैर सगीर और अकमल मेले से निकलकर थोड़ी दूर पहुँचे तो उन्हें वो घाटियाँ करीब ही नज़र आने लगीं। वो बातें करते करते घाटी की तरफ बढ़ने लगे। घाटियाँ जितनी करीब नज़र आती थीं उतनी करीब थी नहीं। उन्हें पहुँचते पहुँचते तकरीबन असर का वक्त हो गया था। इस वक्त मेला अपने उरूज पर होता था। अब सगीर का भी दिल कर रहा था कि काश वो मेले में ही रुक जाता, इतनी दूर अपना शौक़ पूरा करने किसी और दिन आ जाता। लेकिन अब क्या हो सकता था, घाटियाँ अब उनसे थोड़ी ही दूर रह गई थीं। इन्होंने सोचा अब वापस जाकर ही दम लेंगे। खैर 10-15 मिनट मज़ीद चलने के बाद घाटियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, मगर यहाँ पहुँचकर सगीर को कोई भी गैर मामूली बात महसूस नहीं हुई थी। ये बात तो अकमल ने भी देख ली थी कि यहाँ इन घाटियों में कोई ऐसी बात न थी जिसे पुरस्रारियत का नाम दिया जा सके। थोड़ी देर घाटियों के दामन में बैठने के बाद सगीर उठ खड़ा हुआ। दोस्त, मेरा ख्याल है कि वो मेरा वहम होगा, चलो अब वापस चलते हैं, लगता है हमें सब मिलकर ढूंढ रहे होंगे। वो ज़रा परेशान होकर बोला तो अकमल रुक गया। नहीं नहीं, तुम भी कितने बेवकूफ़ हो। अरे जब आ ही गए हो तो अपना मकसद भी पूरा करते चलो। तुमने जो रोशनियाँ देखी थीं, जाहिर है वो रात के वक्त देखी थी ना, है ना ऐसा? उसने सवालिया नज़रों से सगीर की तरफ देखा। हाँ है तो ऐसा ही, मगर हम रात तक रुक नहीं सकते ना। सगीर ने मजबूरी जाहिर की तो अकमल उस पर हंसने लगा। अरे अभी से डर गया? मेरे भाई मर्द बन, इसमें क्या है, हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। मगरिब के बाद तो वैसे भी अंधेरा फैलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आए हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, देख कर ही चलेंगे। और तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास आग जलाने वाले पत्थर भी हैं, कहीं ना कहीं चिराग का बंदोबस्त भी हो जाएगा। लेकिन अब हम वो चिराग देखे बिना नहीं जाएंगे जो रात को तुम्हें नज़र आते हैं। अकमल ने कहा और आसपास से झाड़ियाँ ढूंढकर बंडल सा बनाने लगा। उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सगीर ने उसकी तवज्जो एक आवाज़ की जानिब दिलाई, जो हवा की सरसराहट से ज़रा गहरी
लेकिन गाने की धुन जैसी थी। अकमल के कान भी उसी तरफ मुतवज्जे हो गए, लेकिन ये ज़ुबान ना समझ में आने वाली थी। सगीर और अकमल ने लाख कोशिश की कि वो इस आवाज़ को सुन सकें, मगर ये उनकी समझ में नहीं आई। बहरहाल अकमल ने जल्दी जल्दी लकड़ियों का बंडल बनाया और फिर पत्थर से रगड़कर आग पैदा करने की कोशिश करने लगा। मगरिब का अंधेरा भी चारों तरफ फैल गया था। इन दोनों का ख्याल था कि आग जलाने से वो महफूज हो गए हैं, ना ही कोई दरिंदा उनके पास आएगा और ना ही कोई जिन भूत। खैर वो आगे की जानिब चलना शुरू हो गए, क्योंकि अभी तो वो जंगल की शुरुआत में दाखिल हुए थे। उनका इरादा जंगल के आखिर तक जाने का था, जहाँ से वो उन चिरागों का पता चला सकें। चलते चलते अस्कर ने एक ज़ोरदार चीख मारी और नीचे गिर पड़ा। इसी कशमकश में अकमल के हाथ से भी लकड़ी के वो चिराग गिर गए और देखते ही देखते घास को आग लगने लगी। वो दोनों खौफज़दा हो गए कि अगर जंगल में आग लग जाए तो उनका निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। चनाचे अकमल गीली घास डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। ये अमल करते हुए इन्हें चंद लम्हे ही गुजरे थे कि हवा का एक सर्द झोंका आया और आन की आन में आग बुझ गई। आग बुझने से चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। दोनों दोस्त इस अंधेरे से डर गए थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। इनके दरमियान एक तीसरा वजूद भी मौजूद है और ये उसी का नूर है जो शायद पूरे जंगल में फैला हुआ है। तभी दोनों ने यकमुश्त चौंक कर ऊपर की तरफ देखा तो एक बूढ़े बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जी ने एक भारी आवाज़ में पूछा। सगीर जो काफ़ी घबरा चुका था, उस लम्हे काफ़ी पुरसकून हो गया था। बुजुर्ग के चेहरे पर पिदराना शफकत थी। इन्होंने सगीर से पूछा तो सगीर ने अपने आने का मकसद बयान कर दिया। ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर पुरस्रारियत सी छा गई। वो पलकें झपके बिना उनकी तरफ देखकर बोले, देखो मेरे बच्चों, इंसान को हमेशा अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए, और जहाँ तक तुम्हारी बात है जिन्नात को देखने की, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पहले से ही पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ बस्ती का मालिक मैं हूँ और इस सारी बस्ती में जिन्नात आबाद हैं। यहाँ आने की आज तक किसी इंसान ने जुर्रत नहीं की है, लेकिन हम शर पसंद नहीं हैं। हम मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, ये हमारा कायदा है। तुम फिक्र ना हो बरखुरदार, जिन्नात इतने भयानक नहीं होते जितना बनाकर तुम्हें पेश किए गए हैं। बुजुर्ग सुनते जा रहे थे, जबकि सगीर और अकमल हमतन गोश होकर उन्हें सुन रहे थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त इस बूढ़े की बातों का क्या जवाब दें। उन्हें एक पल को यकीन आता तो अगले पल को बूढ़े बाबे पर शक होने लगा, मगर फिर यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि बूढ़े का हुलिया गांव के सभी लोगों से मुख्तलिफ था। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि इन बूढ़े बुजुर्गों को इससे पहले गांव में नहीं देखा गया था। सगीर और अकमल ने बाबा जी की बातों का यकीन कर लिया। बुजुर्ग ने सगीर और अकमल को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो किसी रोबोट की मानित उनके पीछे चलने लगे। जो बुजुर्ग आगे बढ़ते जा रहे थे, ज़मीन पर मौजूद जुगनों की तादाद में इजाफा हो रहा था। ये बेतहाशा जुगनू पूरे रास्ते को रोशन किए हुए थे, गोया इंसानों के इस्तकबाल के लिए बिछाए गए हों। सगीर और अकमल ने हैरत से इधर उधर देखा। हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ नजर आ रही थीं, जबकि गांव में मौजूद घने लंबे और ऊंचे दरख्तों पर सफ़ेद चिरागों के हाले से बने हुए थे। ये सफ़ेद चिराग कभी जलते तो कभी बुझ जाते थे, लेकिन इनकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी और कायम भी थी। काफ़ी आगे जाने के बाद बुजुर्ग एक दरवाजे पर रुक गए। ये दरवाज़ा शीशे का मालूम होता था और इससे अंदर का मंजर साफ देखा जा सकता था। सगीर और अकमल ने देखा कि शीशे के उस पार एक अलग ही जहां आबाद है, जहां हर चीज़ रंगीन, खूबसूरत और हमेशा कायम रहने वाली मालूम होती थी। लड़कियों के मलबूसात ऐसे थे जैसे सारी की सारी दुल्हनें हों, जबकि मर्द इस कदर खूबसूरत और खूबरू कि सगीर और अकमल का जन्नत का गुमान होने लगा। वो इस मंजर में खोए हुए थे कि बाबा जी जलाली लहजे में बोले, बेटे, आज तो मैंने तुम्हें इस बस्ती में आने से नहीं रोका, क्योंकि तुम हमारी असलियत से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन अब अगर तुम्हें किसी जिन ने उस जंगल में देख लिया तो यकीनन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ आना छोड़ दो। बुजुर्ग ने कहा और वो दोनों वापस उसी जगह पर आ गए
جہاں سے بزرگ نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ صغیر اور اکمل گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت پر عجیب سا بوجھل پن تھا۔ دونوں کو بخار کا مرض لاحق ہو گیا۔ ماں باپ نے بہت ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ بلاخر خوف کی یہ لہر خود بخود ان کے جسم سے نکل گئی۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ جنات نے ان دونوں کو اپنی چراغاں بستی میں جانے سے منع نہیں کیا یا سزا نہیں دی، ورنہ آج نہ ہی میرے ابا یعنی کہ صغیر ہوتے اور نہ ہی اکمل چچا ہوتے، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا اور اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔